डिस्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है यार। ओ गॉड, ये ओ बाप रे, कैसे बच गए। ओके, जाने दे उसको। इतना पता है, लाइट आ गया ना और उसके आंख पे लग गया है ना, तो वो बहुत शायद बहुत हानिकारक है, इतना तो पता है। शायद पूरा ब्लाइंड हो जाता है पर्सन ऐसे कुछ। हाँ, अरे अरे ये गिर जाएगी शायद। मुझे लगा डोर से गिरने वाली थी। ओह नो, Need to see to know where you are hiding. नो नो, ओह गॉड, जीसस। मेरे आंख दुख रहे हैं, इतना ब्राइट है। वो गिरने वाली है। I could stretch my arm out and choke you. वो गिरने वाली है शायद विंडोज से। You're close. So, you're still here. I can't be looking that great. This isn't how I wanted to die. I didn't want it to be like this. I should never have come here. It's all my fault. It would have happened anyway. They didn't give a damn about the disease. They only used it to improve the phenoxyl. The moths were the final piece for the cure, and to show the world how much they were worth. They had noticed how moths were acting on Felton after he caught the disease in Egypt in 58. Oh, he deserved it. We were all test animals at the plantation. They used us. They made us believe we had been touched by the hand of God, giving us the disease as a sign. But then trouble came. The eyes burning, the bandage, the horrible pain in the head. All of this? Just forget. Phenoxyl was created as an antipsychotic drug for war veterans suffering from post-traumatic stress disorder. To forget the horrors. As a father who ruined his daughter's life, forcing her to live as a man. Felton is just like all of us. He was a victim. He could only count on the results of the experiments at the plantation when they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects. Wyman, that fucking bastard, synthesizing parasites and mixing them with the drug, only showed him he could do better. That it was possible to modify and control memories, our memories. But we were only able to control the moths and be sick, very
sooner or later. Now I understand. Belton always told the truth. He just wanted to protect Celeste. From all of this. From himself. From his Jennifer. The sessions were for her to just forget. Forget everything forever. And he was the one to push her to leave. And eventually, she did. She ran away. But I still have unanswered questions. It's not too late. This is not your end yet. It may be the end of everything. And maybe we're already dead. And neither of us knows it. I'm not the one who is crazy here. Maybe we both are. You could have been one of us. No, I couldn't have. Yes, you could have, sister. But I could never forget that day. Oh, the screams, the flames. How could you? You wanted to propagate it as a sign of God. This was not a gift. This was not from God. It was fucking stupid science. And those two things have never been compatible. We believed it. It's true, and we were wrong. But you left us there to die. I don't know. I don't remember. I can't remember. It's all confusing. I don't... It's over now. No, I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life. I don't care anymore. It doesn't matter who you were, what we were. You are what you have become. Look at yourself. I am nothing like this. This is all just farce, discount store garbage. You know, now I remember when I was young and I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else where I could go far away. And now all these memories hurt. Oh, it hurts so much. Why can't we just forget? Why do we have to remember? Because that is how we save our memories from oblivion. She is still alive. You will find her. I know you will find her on top of the world. What? If God is real, I hope he is made of this love. I hope you will both forgive me one day. I already have. Bad habit. Smoking. Forgiveness.
was in the bag? What did she find? A goodbye. A goodbye that spoke of hope. Hope? Do you mean to say that, despite everything, she was not resigned to the idea of finding her? No. Not at all. हाँ तो ठीक है गाइस। इस गेम में बहुत चीज़ें ऐसे अनआंसर्ड ही रह गई है। ऐसे शुरुआत में भी नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बीच में जिसका ठीक से आंसर नहीं मिला। अभी भी थोड़ा पता चल सकता है कि शायद हम उस चर्च में काम कर रहे थे ग्लोरिया के साथ, और बाद में वो वेईमैन, डॉक्टर फेल्टन कुछ तो साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे गॉड के नाम पे, कि गॉड ने कुछ तो ऐसा, मतलब ऐसा कुछ तो रिलेशन है, उनको फंसाना चाहते थे शायद कौन सा तो एक मेडिसिन से। तो रोज़मेरी रीड को शायद, मतलब जो हम कैरेक्टर प्ले करते उसको पता चल गया कि कुछ तो है, तो उसने छोड़ दिया सबको उधर, और शायद मेमोरीज खुद का इरेज कर दिया होगा, इसलिए रोज़मेरी रीड को कुछ याद नहीं है पिछले वाला। तो बाद में बचता क्या है कि हमें शायद एक न्यूज़पेपर या फोटोग्राफ में पता चल जाता है एक चर्च में सब पूरा चर्च जल गया, सब के सब मर गए, और एक पर्सन कुछ तो जिंदा था, वही है ग्लोरिया। वो हो सकता है बाद में वही कि ग्लोरिया ने कुछ तो मैनिपुलेट किया डॉक्टर फेल्टन को, वो पता नहीं क्यों किया, क्या मालूम वो क्यों किया होगा। अरे यार बहुत चीज़ें यार इसमें, जो शायद डॉक्टर फेल्टन को भी है ना ऐसे ही कुछ तो, पर ठीक है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज है, 2 स्टोरीज है जो ऐसे कोइंसाइड कर रही है, डॉक्टर फेल्टन का, उसके बाप का, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग लड़की से लड़का वो सब करना, और बाद में यहाँ पे अलग से डॉक्टर फेल्टन ने एक मेडिसिन जो कि मतलब एक चीज़ बनाए थे जिसके जो अफेक्ट हो गया दूसरे नन्स के ऊपर, मतलब जो चर्च के उस एरिया में थे, चर्च का जो ग्रुप था, तो वो दो स्टोरी से ऐसे एकदम मिक्स करके है यहाँ पे। ये ग्लोरिया है ना शायद फेल्टन से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी उसके साथ, उसकी वाइफ को भी, मतलब डॉक्टर फेल्टन का ऐसा कुछ तो शायद पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ तो फ्लॉ है जिसकी वजह से वो खुद एक परफेक्ट, मतलब क्या मालूम यार, मुझे भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा, वो सबको जेनिफर मान के क्यों मार रहा था, उसके वाइफ को जेनिफर मान के मार दिया, बाद में सेलेस्टी को भी जेनिफर मान के मारने वाला था, बाद में हमें भी जेनिफर मान के मारने वाला था। वो क्यों, वो खुद ही जेनिफर का एक पर्सनालिटी है ना, मतलब खुद ही जेनिफर है, वो पर्सनालिटी भी नहीं, खुद ही जेनिफर है, पर्सनालिटी तो डॉक्टर फेल्टन का है। तो वो ऐसा क्यों दूसरों में जेनिफर देख के मार रहा है, मतलब उसको क्या कुछ जेलस होता था क्या, कि ऐसा कुछ तो मेंटली प्रॉब्लम था क्या, कि कोई और दूसरी लड़की दिखे, शायद वो लड़की जेनिफर बनके एक परफेक्ट डॉटर हो सकती है उसके ग्रैंडफादर के लिए, मतलब वो खुद जेनिफर बनके एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा फॉल्ट है ना शायद, मतलब एक बहुत ही बड़ा ऐसे प्लॉट होल है ना, कि उसके ग्रैंडफादर को तो पहले लड़की चाहिए ही नहीं थी, लड़का चाहिए था, तो वो डॉक्टर फेल्टन दूसरों में ऐसे अरे वो परफेक्ट डॉक्टर बन सकती थी मेरे ग्रैंडफादर के लिए, तो उसके लिए वो वैसे क्यों वो जेलस हो रहा था, जबकि ग्रैंडफादर को डॉक्टर ही नहीं चाहिए था। मतलब ये बहुत ही उधर इधर, मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग ऐसे कर दिया, हर जगह कंफ्यूजन ही है यहाँ पे। और एक पॉइंट में ऐसा भी था ना कि डॉक्टर फेल्टन स्टिल बिलीव्स
दैट ही किल्ड हिज डॉटर, ऐसे हम बोलते हैं ग्लोरिया को। वो भी पता नहीं क्या था। क्या मालूम यार। और क्या है कि हाँ, शुरुआत में शायद ये भी था ना कुछ तो, बेडरूम में आरियाना का बॉडी था जो कि डॉक्टर फेल्टन की वाइफ है, उसको जेनिफर बोल रहा था जब हम पहली बार छुप गए थे। आर्या मतलब पहली बार उस बॉडी को देखा था हमने, उसको भी जेनिफर बोल रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है इस गेम में। बहुत सारा है ना ऐसे प्लॉट होल्स है या फिर अनएक्सप्लेन्ड है, बहुत सारी चीज़ें अनआंसर्ड है, जैसे एंड में बोला ही गया है कि। और ऐसा भी नहीं है कि एक सेंस वाला अनआंसर्ड है, पूरा एकदम कंफ्यूज करके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के कुछ भी अनआंसर्ड बोल दिया। हाँ, चीज़ें अनआंसर्ड है वगैरह। मैं ये गेम खेल के ऐसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब ये लोग बहुत अच्छा कर सकते थे। शायद इनको एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट मिल गया था, ऐसा लग रहा था शुरुआत में। अचानक बाद में अजीब ही हो गया, बाद में बकवास हो गया। गेम में है ना ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स है। एक है कि रिपीटेटिव हो रहा था, गेम प्ले ज़्यादा नहीं था, हम ज़्यादा कुछ एज अ प्लेयर हम कुछ नहीं कर सकते थे। डिस्ट्रैक्शन और हाइडिंग, इस दोनों, इस पूरे गेम में इसके अलावा कुछ नहीं था इस गेम में। लेकिन उधर ही इसका गेम प्ले भी इतना कम है ना कि इस जो छोटा गेम प्ले है उसमें भी रिपीटेटिव लगने लगा है इतना। मतलब बहुत ही बेकार गेम है, मतलब बहुत ही ऐसे, मतलब बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं है ये। मैं रेकमेंड करूँगा कि किसी को हॉरर गेम भी पसंद आ रहा है ना, तो ये मतलब ये हॉरर कम लगेगा एक पॉइंट पे, बाद में जाके फ्रस्ट्रेट होके बीच बीच में तो पजल भी ठीक से नहीं हो रहा था। पजल में भी ऐसे ही कि हाँ मतलब कुछ तो करना है। हाँ, एक चीज़ था, छाता लेना था ना, एक एटिक से कुछ तो लेना था और ढूंढो, ऐसा था ना काइंड ऑफ। पूरे घर में पता ही नहीं था। और क्या था, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे, ऐसा भी है। ठीक है, एक पॉइंट पे ठीक है कि वो चाहते थे कि खुद प्लेयर एक्सप्लोर करे, लेकिन जब ऐसे एक्सप्लोर करते हैं ना तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। पजल्स ठीक नहीं थे, बेकार थे शायद पजल्स तो। और क्या था, एक चीज़ है जो गेम में शायद वन ऑफ द बेस्ट, इस गेम को बहुत ही ऐसे, एक चीज़ है जो इस गेम को शायद बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, शायद हॉरर गेम का है ना, एक हॉरर का एक पूरा एक्सपीरियंस इसमें है एक चीज़ की वजह से, जो कि है म्यूज़िक। जब भी एक जब वो ठीक है, जो भी वो डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर फेल्टन जब हमारे पास आता था ना, या फिर रेड नन पास आता था ना, तो अचानक एक म्यूज़िक तैयार हो रहा है, ठीक है, एक टेंस वाला म्यूज़िक बहुत धीरे से। जैसे जैसे हम और पास जा रहे हैं ना, और म्यूज़िक का टेंस बढ़ रहा है, और जैसे ही देखता है ना, अचानक एक बड़ा अलग ही रिदम वाला एक म्यूज़िक तैयार होता है, जिसकी वजह से वो जो चेस भी है ना, वो जो भी हमें मारने के लिए आ रहा है, वो चेस भी बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस दे रहा है, बस उस एक म्यूज़िक की वजह से। इस गेम का साउंड ट्रैक्स मस्त है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और जहाँ पे भी प्लेस किया है ना म्यूज़िक को, हर एक कॉर्नर में जहाँ पे हॉरर एक्सपीरियंस बना सकता है, उसमें परफेक्ट किया है इस गेम में। बाकी ऐसा एक, मतलब ये एक रेकमेंड करने के लायक नहीं है गेम। आई होप कि सीक्वल में एटलीस्ट, हाँ बाय द वे इसका एक सीक्वल भी आने वाला है, शायद इसी साल में आएगा, 2020 के एंड में ही आएगा। इसका ही कंटिन्यूएशन है शायद से, वो अभी कंफर्म नहीं है, वो चेक करना है। मतलब होना चाहिए, कंटिन्यूएशन होना चाहिए शायद। रोज़मेरी रीड का है ना, आगे और दिखाने वाला है कि किधर है सेलेस्टी। हाँ, सेलेस्टी का क्या है, मतलब आगे शायद स्टोरी क्या है, वो है शायद। हाँ, और पता नहीं यार, एंड में
अलग ही हो गया यार कुछ तो। हाँ बाप रे। आई होप कि एटलीस्ट सीक्वल में है ना ये लोग थोड़ा गेम प्ले थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे, कुछ ज़्यादा ही डाउन साइड्स थे इस गेम में। हाँ लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये गेम इतना बोरिंग होके भी ना आप लोग यहाँ तक लास्ट तक एंड तक आ गए मेरे साथ। एंड तक ये हमने सफ़र एक साथ कंप्लीट किया है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस इस सफ़र पे आने के लिए। मिलते हैं अगले सफ़र पे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।